this board you have to see. So Right, sir. Right, sir. if you are videos on or not doesn't matter. सर आप इनके आइकन पे जाके ना क्लिक करके आस्क टू स्टार्ट वीडियो कर सकते हैं. Okay, let me see if it is possible. No, I can just stop his video because video is already running, so I can't do that. Anyway, doesn't matter. Now we have a problem. Not we have a problem. I have a problem, and my problem is very simple. That Kiana cannot understand Hindi. Hello. I understand few words. You understand Hindi, Kiana? Very few words, but I don't really speak it too much. But you can't speak too much. Hello. Yeah. Hanji. For two people, there is a difficulty in understanding English and Hindi. Kiana has problem in understanding Hindi completely, and Tariq Saab has problem in understand English completely. So both. बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है जो बैठे हैं इस वक्त? हाँ सर, आपकी आवाज बिल्कुल ठा ठा आ रही है सर. तारिक साहब आप बोल रहे हो क्या? अरे यार बोलो ना. Intention that if someone has a problem, he can tell me to repeat. Now, the first and the foremost thing is, then where we are starting a new thing, a new subject, we must remember and pay our respects to our parents who have given us birth. Second thing is, we must also pay our respect to the teachers who have taught us throughout life, and especially those who have punished us. A third thing is about the Almighty God, Brahm. We should also pay our respects who have made this beautiful world. Right? So now we'll start our class. And Kiana, if you do not understand what I'm saying, so you also please tell me to repeat. Now, the rule of the class. Now start the rule of the class. So rules of the class are: 1. Please ask question. First rule is please ask question. If you are not able to understand anything, please ask me. So because I'm starting today, so the question will be what I am teaching today. So in the further classes, if you want to know anything about the past classes, you can ask those questions also. Third thing is, if you want to know anything about astrology, if you have any doubt, you have read some book, you have seen something in video, on YouTube or in TV or anywhere. If you have any doubt, please ask me that also. सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है? So I repeat, the first rule is please ask questions. So today, because the class is starting, so you may have questions only regarding this class only, but still you have class, still you have doubts regarding any topic related to astrology. You can ask me anytime. It is better if we have any doubt, then we ask in the class only, so that any question which you ask benefit other students also. Another thing is, please do not hesitate to ask the question. Most of you are newcomers in the field of astrology, especially Kiana, Weber, as far as I know. They don't have any idea about astrology. Same with Tariq Saab also. He doesn't have any idea of astrology. Please ask me question. मेरे से प्रश्न जरूर पूछिए, मेरे से जरूर सवाल कीजिए. If you think other people, other students know more than you, so
आप ये सोचें कि ओके ओके, आई ट्राई इन हिंदी, राइट? नवीन जी, अगर आप सोच हो, I have no problem in it, but please do this class in Hindi. Okay. Sir, वो कियाना, I speak in Hindi. You just see if it is comfortable with you. क्वेश्चन जरूर पूछें, आप देखो समझ में आती है, क्वेश्चन जरूर पूछें आप। इफ यू थिंक कि क्वेश्चन पूछते हैं तो और लोग हंसेंगे, वो क्वेश्चन जरूर पूछना है। आपको लगता है कि क्वेश्चन ऐसा है जो मूर्खतापूर्ण लगता है, जो ऐसा लगा बेवकूफी का क्वेश्चन, नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं। कोई भी क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगता हो सकता है कि वो बेवकूफी वाला क्वेश्चन है, बट वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट हो जो किसी को भी नहीं आता हो, मुझे भी ना आता हो। आप असेस नहीं कर सकते कि वो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है या कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये असेस मैं कर सकता हूं। तो आप अपना क्वेश्चन खुले दिल से पूछो, प्लीज आस्क क्वेश्चन। कियाना, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड? आप समझ लो, सॉरी, आप समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या? ओह गुड गुड, वेरी हैप्पी विद दैट। So it will be mixed class in English, Hindi, and I do not know Hindi also completely, and I do not know English also completely. So मेरे लिए दोनों का अलग। तो सिर्फ यही rule है, there is no other rule in class. Another rule is that you please come on time. So if the class starts at 4 o'clock, you please come at 4 o'clock. 4 o'clock. Thank you, Kiana. So please come at 4 o'clock. I am a person who start everything on time. I have a habit of that. And if we start at the right time, so nobody will have any botheration. Now, what subject we are learning? कौन सा subject पढ़ रहे हैं? क्या ना, एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष। What we are learning, एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष। तारिक साहब, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं हम या ज्योतिष पढ़ रहे हैं? मैं सोचता बीच में क्वेश्चन पूछूं। I may ask certain questions, so please, ज्योतिष, not astrology. Can you tell me the reason? Astrology. Astrology. So let us find what is the difference between astrology and ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजी जो है वो 2 वर्ड से बना, एस्ट्रल प्लस लॉजी, और ये हो गया ज्योति प्लस ईश। एस्ट्रल मीन्स स्टार, सो दिस इज ग्रीक वर्ड। This is Greek word. The meaning is Aster is Greek word, meaning is star. So logi means logic of stars. Jyoti means knowledge. Ish means Ishwar. I don't think I require to write. Ishwariya knowledge. So the meaning of both the words is different. Why the meaning of both the words is different? What are the words in English? जो शब्द अंग्रेजी में है, जो शब्द इंग्लिश में है, उनके पर्यायवाची सिनोनिम उनके हिंदी में, उर्दू में मिलेंगे जरूरी नहीं है। इंडिया की भाषाओं में तो मिलेंगी नहीं। ऐसे कई शब्द हैं, जैसे रिलीजन, रिलीजन का पर्यायवाची धर्म नहीं है, रिलीजन का सिनोनिम धर्म नहीं है। भगवान का सिनोनिम गॉड नहीं है। तो कई शब्द हैं ऐसे जिनके नहीं मिलेंगे। जो इंग्लिश है वो जैसी बोली जाती है वैसी लिखी नहीं जाती। इंग्लिश और वजह से बनाई गई
हिंदुस्तान की भाषाएं और वजह से बनाई गई, इसलिए उनके सिनोनिम नहीं मिलते। ये हमारा डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। दिस इज नॉट फॉर आवर डिस्कशन। मीनिंग इज कि व्हाट इज द मीनिंग, द पर्पस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योतिष, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार प्लस लॉजिक। मीनिंग ऑफ स्टार प्लस लॉजिक इज दैट वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर लोग ये मानते हैं कि जो स्टार्स हैं उनका इफेक्ट हम पे आता है। हम ये मानते हैं कि स्टार का इफेक्ट नहीं आता, कर्म का फल आता है। और हम किसी के साथ गलत करेंगे तो उसका हमारे पे गलत असर आएगा। ये कंट्रोल जो है ये ईश्वर के एक सिस्टम पे है। ईश्वर का, भगवान का, गॉड का एक सिस्टम है। इससे हमारे ऊपर जो हम कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। उसको समझने की साइंस इस ज्योतिष। ज्योतिष क्या है? एक्शन का जो रिएक्शन है उसको कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, ये ज्योतिष होगी। इसका मतलब जो प्लैनेट्स हैं वो थर्मामीटर है, वो इफेक्ट नहीं डाल रहा है। ये कहते हैं प्लैनेट्स जो है वो इफेक्ट डाल रहे हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? हैव यू अंडरस्टूड ऑल? हैव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Yes, sir. जी यस सर। मतलब शब्द का मतलब बताया मैंने, ठीक है। तो हम जो, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के नहीं है, हम भारत के हैं या ईस्ट और एशिया के हैं, हमारा समझ ये है। तो हम देखेंगे बाद में कि ये होता है, विच इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट और दैट इज करेक्ट। बट कभी मैं एस्ट्रोलॉजी बोल लूंगा, कभी आप ज्योतिष बोल लूंगा, वो भी मुंह से निकल जाता है। लेकिन हम ये समझेंगे कि ज्योतिष ही है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है। So I'll start from Panch Mahabhut. So first I'll start teaching from Panch Mahabhut or Panch Tattva. So we know this. जिनको हिंदी आती है they know this. जो जिनको हिंदी मालूम है उनको तो मालूम है। ये मैंने भा गा वा आ ना लिखा, ये है BH मैंने लिख दिया जिनको नहीं आती हिंदी। भ ग वा न, इसका मतलब क्या है? भा से भूमि, गा से गगन, वहां से इसको वी लिख देते हैं। वैसे वी है तो, लेकिन डब्ल्यू लिखते हैं वैसे तो, बट इसको लिख देते वायु। ए से अग्नि, एन से नीर। सो इंग्लिश इज भूमि मीन्स पृथ्वी, पंचतत्व पृथ्वी और अर्थ। स्पेस, वायु क्या हो गया? एयर। वायु, अग्नि, अग्नि को मैंने लिख दिया, अग्नि इज फायर, दिस इज वाटर। So Panchtattvas, earth, space, air, fire and water. Anybody knows about this other than Deepak ji and KK Singh sir? Anybody knows about it? किसी को मालूम है इसके बारे में? ये पंच तत्व क्या है? नहीं मालूम। चलो ठीक है, मैं पढ़ाया तो नहीं मालूम, मैंने पढ़ाया, ठीक है।
Kiana, what is this? What is the formula? ये क्या है सर जी? वाटर, ठीक है ना? In our Hindu system, the ancient sages developed a science on the basis of पंच तत्व. हमारे जो साधु थे उन्होंने ये पंच तत्व का जो विज्ञान है, साइंस है, वो बनाई. उसमें अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस उन्होंने डिफाइन किया. Yeah, I am talking of 5 elements. They are called as panch tattva. That is in Sanskrit, even in English, even in Hindi also. The words are the same, right? तो H2O जो हो गया वो क्या हो गया? कौन सा तत्व हो गया? It is which element? Water. Water. So क्या ये अर्थ हो सकता है? नहीं. क्या ये फायर हो सकता है? क्या ये एयर हो सकता है? नहीं. H2O क्या अर्थ हो सकता है? नहीं. क्या ना? क्या ना चली गई? No, this question is कि क्या पानी धरती हो सकता है? ये क्वेश्चन है. हाँ, पानी धरती का पृथ्वी तत्व हो सकता है. अभी मैंने पृथ्वी तत्व तो समझाऊंगा आपको. नहीं, तो क्वेश्चन क्या था सर आपका? हाँ, क्वेश्चन यही है कि क्या जल तत्व, वाटर, जल तत्व पृथ्वी तत्व हो सकता है? क्या सर, जल तत्व, जो ये जल तत्व है H2O, आप H2O इज वाटर, क्या ये पृथ्वी तत्व हो सकता है? क्या ये अग्नि तत्व हो सकता है? क्या ये वायु तत्व हो सकता है? क्या ये स्पेस हो सकता है? ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. पृथ्वी तत्व का क्या होता है? पृथ्वी में क्या है? स्टेबिलिटी. पृथ्वी है स्टेबिलिटी. वेट, पृथ्वी वेट है. स्टेबिलिटी, शेप. एग्जाम्पल क्या है? ये ग्लास है मेरे पास. सो दिस ग्लास इज हैविंग स्टेबिलिटी, शेप एंड वेट. ठीक, सो इट इज पृथ्वी तत्व. लाइक टेबल, तो टेबल जो है उसमें स्टेबिलिटी है, वेट है और शेप. स्टेबिलिटी, वेट, शेप क्या है? टेबल में है, सोफे में है. और आपके घर में कौन सी चीज है जिसमें? Sir, any solid substance. चेयर वहीं खड़ी रहेगी. चेयर वहीं रहेगी, चेयर तो हिलेगी. सर हम ह्यूमंस भी तो यही हैं, थोड़ा सिर्फ घूमते फिरते हैं, बाकी वेट और शेप तो है ही. एक मिनट, आवाज आ रही है. अब H2O देख लेते हैं. H2O वाटर. हाँ, इंसान है, मैं बैठा हूँ तो मेरी शेप है, वेट है, स्टेबिलिटी है मेरे में. ठीक है. H2O वाटर में क्या है? स्टेबिलिटी है क्या? वाटर है स्टेबिलिटी? नो. इसमें फ्लूइडिटी है, इट विल मूव. वेट इज देयर, शेप इज नॉट देयर. इसमें तो नहीं है. ठीक है ना. इट विल मूव. शेप, it will change the shape in whichever utensil it will go, it will change the shape. So it changes the shape. अब ये जो H2O है, this property of water, can it go become earth or not? This is the question. अब समझ में आ गई बात, मेरी बात समझ में आएगी. जो property of water, can it change it to stability, weight and shape? Answer is yes. So if it is less than 0 degree, the water will become ice. 0 डिग्री से कम हो जाएगा पानी तो वो बर्फ बन जाएगा. तो बर्फ जो है
संजीव जी चंडीगढ़ में कब गिरती है? When I हाँ, मैंने कहा नहीं पूछा, कब मैंने पूछा। बर्फ जो है वो सोडे में गिरती है बोल रहे हैं, और रात को 8 बजे गिरती है। बिल्कुल ठीक है, रात में 8 बजे से गिरती है। थैंक यू सर। लगता है मेरी कुछ वीडियो देख लिया आप। दिल्ली में भी 8 बजे गिरती है, कमाल की बात। एनीवे, सो जब ग्लेशियर होगा, ग्लेशियर, तो ग्लेशियर इज अर्थ, ग्लेशियर इज अर्थ। So this H2O will become glacier. ठीक है, हाँ, yes, yes. Now you are running a distillery, right, sir? Thank you. So water will become ice or glacier. So the जो तत्व का जो मैटर है वो चेंज हो गया, वो अब जो है पृथ्वी तत्व हो गया। ये पानी आग हो सकता है, फायर, फायर में क्या होगा? एनर्जी, टेम्परेचर ओनली, इट डजंट हैव एनी स्टेबिलिटी, वेट, शेप, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? तो क्या ना ये H2O एनर्जी बन सकता है, फायर बन सकता है। क्या ना हिंदी गाने सुने, हिंदी गाने, यस, तो हिंदी गाने और सुनो तो आपको ज्योतिष की और नॉलेज बढ़ेगी। ये उससे पता चलेगा आपको कि जो ये पानी है एनर्जी बन सकता है। एक और अंकल थे, अंकल जेम्स वॉट। अंकल जेम्स वॉट ने पता किया कि जो पानी है वो एनर्जी बन सकता है। और एक जो है हिंदी फिल्म की हीरोइन भी बताती है, पानी में जले मेरा गोरा बदन, ठीक है ना। दूसरा जेम्स वॉट ने बताया कि पानी जो है वो स्टीम इंजन से हम किसी भी चीज को खींच सकते हैं। तो उसने, जेम्स वॉट ने स्टीम के इंजन को इन्वेंट किया। तो जब पानी बन जाएगा भाप, भाप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सर जी भाप, स्टीम। स्टीम। तो स्टीम अंडर प्रेशर, तो स्टीम अंडर जो प्रेशर होगी उसमें एनर्जी होगी। तो H2O जो है वो फायर बन सकता है। वेपर जो है दैट इज एयर, दिस इज वेपर। So vapor is, say, at the atmosphere by 100 degrees Celsius is vapor only, but it doesn't have energy. उसको और अंदर प्रेशर में करेंगे तो वो फायर बन जाता है। तो वाटर कैन बिकम अर्थ, वाटर तो वाटर है ही है, वाटर कैन बिकम फायर, वाटर कैन बिकम वेपर। तो पंच तत्व का मतलब है कि एक ही केमिकल फार्मूला, सेम केमिकल फार्मूला, वो डिफरेंट तत्व में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये फिजिकल फॉर्म ऑफ साइंस हुई जो हम पंचतत्व की बात कर रहे हैं। अभी और समझने की जरूरत है। एयरी एलिमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? तो अर्थ की होगी स्टेबिलिटी, वेट और शेप। वाटर की होगी फ्लूइडिटी, वेट एंड इट चेंजेस द शेप। फायर एनर्जी है। एयर क्या है? फ्लूइडिटी इज मोर देन वाटर, फ्लूइडिटी इज मोर देन वाटर, इसकी फ्लूइडिटी वाटर से ज्यादा है। ये ड्राइनेस देगी, ये वेट होगा, ये ड्राइनेस देगी। और क्या है? साउंड, एयर आवाज भी करती है, साउंड, ढोल होते हैं ना, ड्रम बीट जो है, तो एयर से ही आएगी ड्रम बीट, ऐसे नहीं आएगी, तो आवाज भी करेगा। तो हमें मालूम चल जाएगा दिस पर्टिकुलर आइटम इज हैविंग एयरी एलिमेंट, ठीक है। स्पेस तो स्पेस है, दो चीजों में डिफरेंस वो स्पेस है, ठीक है। अब जैसे मैं पढ़ाऊं आपको 5 घंटे, आप 1 घंटे के बाद ही बोलोगे सर गिव अस अ स्पेस,
बच्चा स्कूल से पढ़ाई करके आया घर, तो उसको कुछ देर खेलना, तभी उसका दिमाग जो है और पढ़ पाएगा। स्पेस होना चाहिए। कितना खाना खाओगे, फिर 4-5 घंटे के बाद स्पेस बनेगा। अभी खाना वी हैव टेकन फूड, तो 5 घंटे के बाद देन फिर भूख लगेगी, तो देयर हैज टू बी स्पेस इन बिटवीन 2 मील्स। तो 2 खाने के अंदर भी जो है वो जो गैप होना चाहिए। बच्चा जब छोटा होता है तो मम्मी से चिपका रहता है, मम्मी 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 करता रहता है, ठीक है। जैसी बीवी आती है तो मम्मी को कहता है मम्मी गिव अस सम स्पेस, ठीक है ना। तो नए नए जो इनकी शादी होती है वो बिल्कुल जोड़े इकट्ठे रहते हैं, फिर डाइवोर्स हो जाता है कुछ टाइम बाद, तो स्पेस हो जाता है बिल्कुल। तो स्पेस कई तरीके से, जरूरी नहीं है ये सभी फिजिकल फॉर्म है, ऐसा नहीं है ना। ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ये फिजिकल फॉर्म में हमेशा नहीं है, ठीक है। मैं और समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन मोर। ये सभी चीजों में मिलेगा आपको, पंचतत्व इज अवेलेबल इन एवरीथिंग। पंचतत्व आपको सब में मिलेगा, ये हमारे में भी मिलेगा। आप बोले थे इंसान जो है वो, आदमी जो है वो अर्थ है, पृथ्वी तत्व, अर्दी तत्व, पृथ्वी तत्व, ठीक है। अभी देखते हैं आदमी क्या है, इंसान क्या है। कोई भी चीज जब शुरुआत में बन रही है, कोई भी चीज शुरू में बनेगी, तो उसमें पृथ्वी अर्थ का तत्व अधिक होगा, अर्थ का तत्व ज्यादा होगा। जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हाउ विल बी मेक अ बिल्डिंग, कैसे बनाएंगे, आयरन बार, सरिया, उसमें आयरन बार, और क्या क्या डलेगा, कंक्रीट, हैवी लॉग्स ऑफ वुड, तो जहां पर ये वुड हटा देता हूँ, ये जहाँ माउंटेन रीजन है वहीं ज्यादा यूज होती है, कनाडा में यूज होती है, इंडिया में यूज कम होती है। तो बेसिकली कोई फाउंडेशन अगर बनानी है तो मेनली जो यूज होता है दैट इज सरिया। सरिया इज आयरन बार, कंक्रीट, सीमेंट, स्टोन डस्ट, वाटर एंड सीमेंट, ये यूज होता है। एम आई राइट भाई, कोई बताओ। भावना जी, मैं ठीक बोलूं? आपने बिल्डिंग बनते देखी है, पिलर कैसे बनेगा भावना जी? जैसे पहले सरिये डलते हैं, उसके बाद में फिर वो सीमेंट वगैरह का प्लास्टर सब होएगा। नहीं, कंक्रीट डालेगी ना, सरिया जो है, जी सर। सरिये के अंदर एक मसाला बनता है, उसमें कंक्रीट डलता है। हाँ जी सर। Concrete is earthy. Why concrete is earthy? It has stability, weight and shape. Iron bar also has stability, shape and weight. ठीक है ना? Stone dust में अगर वो इकट्ठी रखेंगे हम, तो भी उसमें यही, it is also earthy. उसमें पानी डालते हैं और उसके अंदर सीमेंट डालते हैं, तो उसके बाद पिलर खड़े होते जाएगा। फिर छत डलती है, छत में क्या डलता है, यही डलता है, ठीक है। तो कितने मंजिल की मतलब बिल्डिंग बनाए हम, कितना कितना फ्लोर का बिल्डिंग बनाए, 2 फ्लोर, 3, 4, 5, तो कितनी फ्लोर बने? जितनी आप हैं, 3 काफी है सर। 3 सो 3 फ्लोर की बिल्डिंग में यही लगेगा, जितना मर्जी फ्लोर बना है। द बेसिक इंग्रेडिएंट इज दिस। उसके बाद जो है, तो बेसिक इंग्रेडिएंट इज अर्थ। ये तो ड्राई हो जाएगा, ये भी ड्राई हो जाएगा। तो बेसिक इंग्रेडिएंट ये बनता है, ये सिर्फ सीमेंट जो है, ये आयरन बार कंक्रीट को इकट्ठे करने के लिए, ताकि वो जॉइन हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है ना।
अब वो 3 मंजिल बन गई, 3 फ्लोर बन गए। 3 फ्लोर बनने के बाद फिर क्या होगा? प्लस्तर होता है, फिर पेंट होगा, यही होता ना। फिर फिटिंग्स लगती हैं, ऐसे ही होता ना। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ जी सर। ठीक है, बस यही रुक जाते हैं, विल स्टॉप हियर। अब बच्चा जो पैदा होता है, बच्चा जैसे पैदा, वो बिल्कुल पैदा हुआ तो ही नीड्स मिल्क। उसके बाद 1-2 साल का हो जाएगा तो उसको क्या क्या चीज खाने को चाहिए? जो चीज मीठी हो, बच्चा मीठी चीज पसंद है। किया ना? आई एम राइट? द चाइल्ड लव्स स्वीट। Yes. What are the sweet things which are heavier than water? जो भी मीठी चीज होगी वो heavier than water होगी। कौन सी? Sugar, rice, wheat. These are heavier than water. चीनी डालेंगे पानी के नीचे बैठे। So whatever is sweet settles below the water. So it is earthy. So child loves to eat anything which is sweet. चावल बना के दे दो, उस दूध और चावल बना, खीर बना दो, कॉर्नफ्लेक्स बना दो, कुछ ऐसी चीज बना दो जो मीठी है तो वो खा लेगा। अगर सब्जी बनाओगे तो नहीं खाएगा, मसाला नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट। अब वो भारती जी कैसे बनते हैं खाना, वो सॉरी चावल कैसे बनते हैं? मैंने बनाया नहीं। चावल भिगोए जाते हैं पानी में। ठीक है ना? तो जैसे अगर मैं राइस बनाना है तो राइस, उसमें पानी डालना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? पहले उसको सोक करते हैं, जब वो फूल जाते हैं तो उसको फायर पे रखते हैं। फायर। तो पहले अर्दी आइटम इज राइस, वी हैव टू ऐड वाटर हम्म, एंड देन वी हैव टू इग्नाइट फायर। ठीक है? हम्म, तो जैसे हम बिल्डिंग बना रहे थे, बिल्डिंग में भी अर्थ, वाटर और फायर यूज कर रहे थे। रोटी भी बनानी है तो पहले पानी डालना पड़ेगा, वो डव बनाना पड़ेगा, फिर उसको आग में ही जलाना पड़ेगा, तभी खा सकते हैं, नहीं तो जाएगा नहीं। वी जो अर्धी आइटम सीधी नहीं जाएगी पेट में। गेहूं सीधा नहीं खा सकते, चावल सीधा नहीं खा सकते आप, उसको आग लगानी पड़ेगी। ट्रू ट्रू। ठीक है ना? आग लगानी समझते हो ना? किसी को आग लगानी, किसी को किसी से लड़वाना हो तो उसमें आग लगानी पड़ती है। ठीक है ना? तो आग लगाना है। ठीक है? तो बच्चा जब तक वो 15-16 साल तक का होगा, भारती जी आप मेरे से बेहतर जानते हैं, उसको यही चीज चाहिए, मीठी मीठी चॉकलेट खिला दो, मीठा आइसक्रीम खिला दो, मीठा खिला दो। और 18-20 साल की होगी लड़की, 16 साल की होगी, 18 साल की होगी, फिर क्या पसंद आएगा उसको? कियाना विल टेल। कियाना, जब गर्ल इज 16-18 years बट शी ईट्स, उसका टेस्ट बड बदल जाता है। She'll eat what she wants to eat. She'll eat what she wants to eat. No, that is obviously she will eat what she wants to eat. The thing is, अब उसको चाट पकौड़ी पसंद आएगी। हम्म, उसके बाद जो लड़की है, जैसे बिल्डिंग में, बिल्डिंग थी, उसपे पीओपी लगाई जा रही थी, हम्म, पेंट लगाया जा रहा था। हम्म, अब वो 16-18 साल का लड़का होएगा, वो भी यहाँ टैटू लगाएगा, यहाँ टैटू, यहाँ टैटू। ठीक है? पेंट, लड़की वो पेंट, पेंट। फिटिंग्स, कौन सी फिटिंग लग रही थी बिल्डिंग बनने के बाद?
बाथरूम फिटिंग, बिजली की फिटिंग। अब यहाँ भी फिटिंग लगेंगी, यहाँ लगेगी फिटिंग, यहाँ लगेगी फिटिंग, लगेगी ना। बचपन में नहीं लगती, बचपन में भी नहीं लगती। ये बचपन जैसे ही खत्म होता है, बचपन की तरफ जा रहा होता है, तो उसके बीच में जब टीनेज खत्म होने को होती है तो फिर पीओपी लगती है, पेंट लगती है ना। जी तो जो पेंट हो गया, पेंट anything having luster, paint, these are fiery things. चूना नहीं होता, कैल्शियम कार्बोनेट, आगे बोलता ना वो। तो ये जवानी है। तो अर्थ एंड वाटर जो है इन आयुर्वेद इज कॉल्ड कफ, वाटर एंड फायर इज पित्त। बचपन, ये होगा आपकी यंग, जब आप यंग लाइफ हो गया। एयर क्या है, इसका ये स्वीट है, एयर का जो टेस्ट है दैट इज बिटर। फायर का तो टेस्ट आपको पता है, एस्ट्रिंजेंट, ठीक है, मसाले का। जब जवानी होती है तो मसाला खाता है, और बुढ़ापे के अंदर वो डिस्टिलरी वालों के पास जाता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर एयर होती है, जो अल्कोहल में, अल्कोहल उसका जो टेस्ट है बिटर होता है, अल्कोहल। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कोई भी एक आइटम है, it can have 2 or 3 elements. Now I'm telling something different. First I told you that wheat, rice, sugar, this is only earthy. Water तो water है। फायर कौन क्या हो गया, मसाला, जैसे रेड चिली, व्हाइट चिली और ब्लैक पेपर, दीज आर फायरी एलिमेंट्स। और एरी एलिमेंट कौन सा होगी, विच आर बिटर। बिटर कैसी होगी, करेला, वो बिटर गोर्ड करेला हो गया, या एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है वो एरी होगी। अब आ जाते हैं हम स्पिरिट पे। स्पिरिट की जो टेस्ट है, स्पिरिट में 2 एलिमेंट है, स्पिरिट में 2 एलिमेंट है, एयर एंड फायर। स्पिरिट में 2 एलिमेंट है, एयर एंड फायर। तो पीने के बाद क्या होता है आदमी, स्पिरिट पीने के बाद क्या होता है आदमी, स्पिरिचुअल हो जाता है, ऊंची ऊंची बात करेगा, है ना, अध्यात्म की बात करेगा। अध्यात्म सोचते हैं, अध्यात्म, डू यू अंडरस्टैंड अध्यात्म तारिक जी? अध्यात्म समझते हैं? मजहबी बात है, हाँ सर, मजहबी बात है, कौन सी बात है सर? हाँ मजहबी, हाँ अद्दे से होता है सर, अद्दे होता है, जब अद्दा अंदर जाता है ना तो आदमी मजहबी बातें बोलता है, अध्यात्म। उससे पहले नहीं कोई बोलता, ठीक है ना। अंग्रेजी में उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, ठीक है। एक स्टेबिलिटी कम खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब एरी जो उसकी एलिमेंट है बॉडी में इंक्रीज कर गया। जब हम हैवी फूड खाते हैं, जैसे रोटी हो गई, चावल हो गए, तो हमें नींद आएगी एकदम अर्धी हमें। लेकिन अगर हम मिर्च खाएंगे, सीधी मिर्च खाएंगे, तो क्या होगा, भागेंगे पानी की तरफ। अगर हम
कड़वी चीज खाएंगे तो क्या होगा, एयरी डिस्पोजिशन बढ़ेगी हमारी। शराब पीते ही आदमी हवा में बातें करता, और दूसरा एनर्जी बढ़ जाती है उसकी, और स्टेबिलिटी गिरने लग जाती है। एयर से क्या होगा, आपकी स्टेबिलिटी गिरेगी ना। जो एयरी आइटम होगी जिसके अंदर हवा होगी, उसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी अर्धी से उल्टा हो गया ना ये, तो स्टेबिलिटी गिरेगी। जब गुब्बारा है, बैलून है, जब तक उसको आपने हवा नहीं भरी वो नीचे पड़ा रहेगा इतना छोटा। जैसे उसके अंदर हवा भर जाओगे उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से शराब पीने से एक तो आदमी लड़खड़ाने लग जाएगा, बातें ऊंची ऊंची करेगा, जोश आ जाता है। जोश जो हो गया उसका फायर हो गया। ये पता चल गया दारू का क्या मतलब, स्प्राइट पीने से, स्पिरिट पीने से क्या होता है। सबको स्पिरिट पीने से का पता चल गया। हेलो जी। आप मेरे को तसल्ली होगी मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ। अब आ गया स्पेस। स्पेस कसैले का मैं एक मिनट अंग्रेजी देखता हूँ। स्ट्रिंजेंट, मैं गलती से उसका बोल गया था, फायरी का स्ट्रिंजेंट बोल गया था। स्पेस का जो टेस्ट है दैट इज स्ट्रिंजेंट। जैसे कैसे सौंफ नहीं होती, सौंफ क्या ना, सौंफ पता है, सौंफ फीनल। एनी सीड्स, ANI, सर फेनल भी बोलते हैं सर। क्या बोलते, फेनल भी बोलते हैं सर। फेनल सीड्स। फेनल हाँ सीड्स। फैन, ठीक है ना। तो फेनल सीड होगी, तो और कौन सी होगी जैसे, और मैं बताऊं, आंवला, और क्या, पोमीग्रेनेट, फेनल। ये इनका जो है थोड़ा कसैला होता है टेस्ट। अब ये जो है क्लिनजिंग करेंगे बॉडी को, दे आर क्लिनजिंग एजेंट। तो ये स्पेस बनाएंगे बॉडी के अंदर। तो सब्जी होगी, फ्रूट के छिलका हो गया, फ्रूट का जो छिलका हो गया वो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट देगा, वो स्पेस है। तो जवानी जो है वो कफ है, अर्थ एंड वाटर ये खाता है आदमी, सॉरी बचपन में अर्थ एंड वाटर, शुगर या मीठी चीज खाता है। जवानी के अंदर वो फायरी चीज बढ़ा देता है। बुढ़ापा जो है दैट इज एयर एंड स्पेस। एयर एंड स्पेस का मतलब है वाह। बुढ़ापे के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर स्पेस इंक्रीज हो जाता है। जो आप समझेंगे, स्पेस इंक्रीज होता है जॉइंट्स के अंदर, और स्टेबिलिटी जो है, क्योंकि एयर एंड स्पेस है, स्टेबिलिटी जो है बुढ़ापे में खत्म होने लगती है। तो बिल्डिंग भी जब पुरानी हो जाएगी तो उसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर भी क्रैक डेवलप हो जाएगा। जैसे मेरी बिल्डिंग में क्रैक आ रहा है, ये देखो क्रैक्स, बिल्डिंग के अंदर क्रैक डेवलप हो गया। तो किसी ने वो सुनी है, वो नाम उसका शहनाज हुसैन, किसी ने नाम सुना है इसका? किसी ने नाम सुना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब ये बिल्डिंग कैसी है, ये पुरानी है या कैसी है? हाँ जी, बिल्डिंग पुरानी होगी। अब जब बिल्डिंग पुरानी हो गई तो अब इस बिल्डिंग पे कोई भी आप पीओपी करो, भाई मैं अपनी बिल्डिंग को कैसे भी ठीक करने की कोशिश करूं, ऊपर पीओपी लगा के, कैसे भी पेंट लगा के, तो बिल्डिंग तो पुरानी है ना, वो बिल्डिंग पुरानी लगती है। तो इसलिए शहनाज हुसैन को देख के मम्मी कहती है बेटी सो जा, नहीं तो शहनाज हुसैन आ जाएगी। आप
देख रहे? अब पता चल जाएगा कि बिल्डिंग पुरानी है, ये कैसी लगती है। अब वो काम नहीं करते ऊपर ना, थोबड़े के ऊपर जो, अब इसकी जवानी की फोटो भी होगी, तो अब थोबड़े के ऊपर वो जो पेंट वगैरह वो उतना काम नहीं करता। जब जब व्हेन शी वुड हैव बीन यंग, तो ये देखो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है फेस के ऊपर। और जैसे ही बिल्डिंग पुरानी होती है, फिर आप कुछ भी लगाते रहो, लगता है कि भाई ये बिल्डिंग पुरानी है, ठीक है ना। तो ये जो है आंवला, पोमीग्रेनेट, फेनल हो गए, सीड्स हो गए, और क्या हो, क्या नहीं बोला, फ्रूट्स, फ्रूट्स के छिलका या वेजिटेबल्स, इनका छिलका, ये बॉडी को क्लीन करने के लिए। तो जो हमारा जो वेस्टर्न सिस्टम है, खाने का हो गया या न्यूट्रिशन का हो गया, वो डिपेंड करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन ए, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, जे, के, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, गोल्ड। जो हमारा इंडियन सिस्टम है, वो उसका कोई लेना देना नहीं, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, किसी से कोई लेना देना। तो अगर आपको बीमारी हो रही है तो आपको एंटीबायोटिक लेने, आप पतले हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, कफ वाली आइटम लेनी, आपको जुकाम कफ हो रहा है, आपको गोलगप्पे खाने, फायरी आइटम लेनी, क्योंकि आपका कफ बढ़ गया, तो कफ को आपको खत्म करना। तो यहाँ पर सिस्टम डिफरेंट है, वहां पर सिस्टम डिफरेंट है। ये पंच तत्व की जो साइंस है, ये आगे भी काम आएगी। अभी तो फूड पे मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया, आपको एज से बता दिया, इस तरह से मौसम से भी है, इस तरह से डेट के टाइमिंग्स में भी है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। वो हम मेडिकल साइंस में कर लेंगे, बट एक कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश कर रहा था मैं। तो अच्छा, ये लंदन में रहती है? नहीं, ये साउथ एक्सटेंशन में रहती थी, या नहीं, ग्रेटर क्लास में रहती थी। चलो, अब मुझे क्या करना है, बुढ़ी भी हो गई है, मुझे क्या करना है, पता करके कहाँ रहती है, हमें क्या लेना। ठीक, कोई एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो प्लीज। सर जैसे आपने बताया सर कि अर्थ वाटर कफ है, हाँ जी सर। सर आपने बताया ना सर कि अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन कफ करता है, वाटर फायर का पित्त करता है, तो सर ऐसे स्पेस और अर्थ का भी कॉम्बिनेशन कुछ करता है सर? नहीं नहीं, जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आयुर्वेद के अंदर त्रिदोष माने गए। त्रिदोष या 3 चीजें मानी गई हैं, कफ पित्त और वात। कफ, पित्त और वात। उसका मतलब क्या है वो मैंने आपको बताया। ये भी मैंने बताया, तो मैं आपकी बात को क्या कह रहा हूँ, ये भी मैंने आपको बताया, किसी चीज के अंदर वाटर फायर भी हो सकता है, तो सॉरी, वाटर फायर तो हो गया, फिर किसी में फायर और एयर भी हो सकता है किसी चीज के अंदर। ऐसा नहीं है कि अर्थ वाटर ही हो गया, वाटर फायर ही हो गया, एयर स्पेस। जैसे आपने बोला अर्थ और स्पेस हो सकता है, वैसे आपका क्वेश्चन है, वो मुझको नहीं लगता कि हो सकता है। क्यों? अर्थ जो है, स्पेस जो है, स्पेस ये ह्यूज है। ये अर्थ, वाटर, फायर, एयर, सभी कुछ जो है वो इन्हीं, सॉरी, स्पेस के अंदर ही बाकी 4 एलिमेंट हैं। तो कोई भी चीज उसके अंदर इतना स्पेस हो, मतलब सॉरी, कोई भी चीज हो उसके अंदर स्पेस होगा, तो अर्थ तो बड़ा थोड़ा सा ही होगा। आप समझे मेरी बात? आप जो स्पेस को देखो, स्पेस के अंदर स्टार्स ही तो हैं जो अर्धी एलिमेंट है। स्टार्स जैसे अर्थ होगी, ये तो खैर बहुत ही छोटी है, वो इतना बड़ा स्पेस में कितनी सी है, थोड़ी सी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, होने को कोई भी हो सकता है। अर्थ स्पेस भी हो सकता है, एयर स्पेस हो सकता है, फायर एयर हो सकता है, फायर स्पेस हो सकता है, वाटर फायर हो सकता है, वाटर एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने जैसे उसका वो स्पिरिट का मैंने खासकर बताया था, मतलब वो मेरा पसंदीदा है, इसलिए मैं बताया कि स्पिरिट के अंदर फायर और एयर है,
अब उसको अगर आप सीधा डायरेक्ट पी लोगे तो आग लग जाएगी अंदर। मैंने बड़ी थोड़े में बता दिया। अगर आप नीट ले लोगे तो क्या होगा, इसलिए ऑन दी रॉक्स लेना होता है, पानी डालना होता है। दीपक जी बोलने वाले थे कुछ होता है। हाँ दीपक जी बताओ क्या होता है। सर आपका नेट रुक रहा था, मैंने वो बोल रहा था। अच्छा अच्छा, अगर हम डायरेक्ट ले लेते हैं तो क्या होगा, संजीव जी बता सकते। संजीव जी डायरेक्ट ले लें तो क्या होगा सर, मतलब नीट ले लेंगे। Kiana, what I want to say is that we can classify. No, sir, Sanjeev ji, we cannot hear you. You are muted. So, एक minute, I am answering Kiana. So then I'll ask you to say whatever you want to say. Kiana, what I want to say is that there are various stages from child to adult to old age. So when you are a child, then it is a cuff age, young age, or when you are adult is the with age. Then you have a lot of energy also. So once the child is 18 years of old, he has a lot of energy, and that energy goes down day by day till he reaches to age of old age. The old age is air and space. Similarly, the seasons also have been classified into Vat, Pitta and Kapha. The day timings are also classified into Vat, Pitta and Kapha. Food items have giving you an introduction, classified into Vat, Pitta, Kapha or 5 elements. So this is what I wanted to say. Today at this moment I just want to give you an introduction of what is. Today only I wanted to just give you an idea about what are these Panch Tattvas or 5 elements. Nothing more than that. So all the classification are on the basis of Vat, Pitta and Kapha in ancient sciences. जितने भी आपकी 3 मिनट के लिए ना वीडियो रुक गई थी बीच में ना, 2 मिनट के लिए था। कोई बात, जितनी भी पुरानी साइंस हैं वो इन पंच तत्व में डिपेंड करती हैं, जो है अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। इनको वात, पित्त और कफ बताया गया है आयुर्वेद में। हमारा जो बचपन, एडल्ट एज, ओल्ड एज क्लासिफाइड इनटू कफ, पित्त एंड वात। हमारा मौसम, वेदर also classified into Vat, Pitta and Kapha. Day timings, like morning is Kapha, the afternoon is Pitta because sun is on the top, night is Vat. So that is also classified. Similarly, I have given you an introduction. Even the food items are also Vat, Pitta and Kapha, and even the medication is done on the basis of Vat, Pitta and Kapha. Right? So that was just an introduction only. In future classes, we will go on talking about this whenever required. Basically, it will be required only in medical astrology. Medical astrology जब करेंगे तभी हमको benefit होगा। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे सर, संजीव जी? पूछिए सर, what was the question सर? हाँ जी, what was the question सर? पूछिए मेरे को। आप स्पिरिट के बारे में क्या पूछ रहे थे? संजीव जी, मैं ये कह रहा था अगर हम उसको नीट पिएंगे तो क्या होगा? अंदर से सारा जल जाओगे सर। अंदर से जल जाएंगे हम सारे के सारे, क्योंकि उसके अंदर फायर बहुत होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको पानी करना है के पीना चाहिए। जी सर। सिर्फ हम अगर पानी में भी डाल के पिएंगे तो पानी भी उसकी आग को खत्म नहीं कर सकता, कम कर देगा, वो कम कर देगा। तो हीरोइन क्या कहती है, पानी में जले मेरा गोरा बदन। तो हीरोइन क्यों कहती है पानी में जले मेरा गोरा बदन? क्योंकि उसने कुकर जो है वो गैस पे रखा है और कुकर की जो सीटी है उसमें से जैसे भाप निकली है, उससे उंगली उसकी जल गई है, इसलिए वो हीरोइन कह रही है पानी में जले मेरा गोरा बदन। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि जब दारू पिएंगे पानी में डाल के ऑन दी रॉक्स, उसके साथ में हैवी फूड खाना चाहिए। हैवी फूड, अगर हैवी खाएंगे तो चढ़ेगी नहीं तो बड़ी जल्दी चढ़ जाएगी। ठीक कह रहा हूँ सर जी? जी सर, जी सर।
वो चढ़ जाती है, क्योंकि अर्दी एलिमेंट ज्यादा खाना है तो फिर वो चढ़ेगी नहीं। तो अर्दी एलिमेंट बहुत खाएंगे तो फायर एंड एयर जो है हमारे ऊपर ज्यादा असर नहीं कर पाएगी, करेगी तो है पीडीएफ। जी सर। और कोई क्वेश्चन इसमें कुछ पूछना? वो शराब पी के आइडिया भी बहुत आते हैं। वो होता था गालिब, गालिब शेर और शायरी लिखता था, पी के लिखता था। म्यूजिक बनाते हैं जब तो पी के बनाते, नशा करके बनाते, बजाते हैं तो भी नशा करके बजाते, तो उसका अभी म्यूजिक अलग ही निकलता। So sir, I have a question. जब ये आप जो भी समझा रहे थे, this all is related to our day-to-day activity, and is it so related to, supposing if I have fallen sick today, I have fever for example, so that means मेरी body की elements हिली हैं, इस वजह से मेरे को बुखार चढ़ा, and that has a direct connect with my planets also. Is that what you mean? प्लैनेट्स तो मैंने कहा नहीं है, कर्म गलत थे आपके। मैंने तो कहा है आपने वो पहना नहीं, आप चले गए तो फिर बुखार हो गया। मैंने तो कर्म की बात की थी, मैंने तो बात ही नहीं की प्लैनेट्स की। मैं तो यही कहा है कि जो हमारा जो एंशिएंट साइंसेस हैं वो भाग्य पे विश्वास नहीं करती, प्लैनेट्स पे विश्वास नहीं करती, कर्म पे विश्वास करती। भगवान कृष्ण ने कोई प्लैनेट की बात नहीं करी। उसने कहा नहीं कि शनि खराब हो गया अर्जुन तेरा तो तू गंडीव उठा। उन्हें कर्म करना पड़ेगा। ये जो प्लैनेट्स हैं दे आर थर्मामीटर, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली वो कर्म का क्या फल होने वाला है। ये मेरी बात समझने वाली है आपकी, ठीक है ना? ओके, तो आपका सवाल था, ठीक है ना? तो वो आप इस तरह से भी कह ले तो आप कह तो ठीक ही रहे हैं। अब इतना ज्यादा हमेशा वो फिलोसफिकल बोलना ठीक नहीं है, लेकिन बात ठीक है, अभी शनि खराब है हो गया, आई एग्री, लेकिन हमें समझना जरूरी है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना? तो आज अगर आपको बुखार हुआ है तो एक तो ये पंच तत्व के नॉलेज से हमें पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। जो जो शनि महाराज खराब हुए हैं, राहु है, वो तो अभी स्टडी है, अभी तो वो आपको करनी है। लेकिन पंच तत्व के नॉलेज से हमें पता चल जाए करना क्या। करना क्या का मतलब पंच तत्व ये कैसे कैसे नॉलेज होगी हमारी, क्या बता दूं आपको। ये आदमी है, यहां से यहां तक ये हमारा फायर है। फायर जो बॉडी है इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू पंच तत्व। यहां से यहां तक फायर है। तो भारती जी कार चलाते हो आप? हाँ जी। तो जब एसी चलाते हो तो एसी की हवा किस तरफ करते हो? इस तरफ करते हो, नीचे करते हो, टांग की तरफ करते हो, कहाँ करते हो? फेस की तरफ ही ज्यादातर होती है। तभी और फेस की तरफ करते ठीक हो जाता है सब कुछ। बॉडी पे पसीना निकल रहा है लेकिन फिर भी हो गया। क्यों ठीक हो गया? ये माइक्रो प्रोसेसर ये खत्म हो जाएगा, आग लगी इसको। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ये ठंडा होना चाहिए। बॉडी को पता है, आपको नहीं पता है, लेकिन आपकी इंस्टिंक्ट बताती है। आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस है जो कहती है कि अगर मैं मुंह धो लूंगी तो मेरे को ठंडा लगेगा, मैं एसी की हवा इस तरफ कर लूंगी अब मेरे को गर्मी नहीं लग रही। तो यहाँ ये फायर है, इधर से लेकर ये गड्ढा है यहाँ पर, उसके नीचे यहाँ गड्ढा है, सोलर प्लेक्सस, ठीक है ना? सोलर प्लेक्सस से नीचे फिर जो आपका नेवल पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन हो गया ये हो गया फायर एयर वाटर। तो आपको अगर हीट स्ट्रोक लगेगा तो यहाँ लगेगा। तो जब बुखार होएगा 102 तो यहाँ ठंडी पट्टी रखनी पड़ेगी, नहीं तो माइक्रो प्रोसेसर उड़ जाएगा। एयरबॉर्न डिजीज होगी तो यही होगी।
ठीक है ना, अस्थमा या फिर वाटर बॉर्न डिजीज होगी स्टमक और इंटेस्टाइन, और सेक्सुअल डिजीज होगी वो अर्दी डिजीज है, वो अर्दी डिजीज है। जब अर्थ कंटेमिनेटेड होगा, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन विल गिव दिस डिजीज, वाटर पोल्यूशन विल गिव दिस, सॉइल पोल्यूशन जो है सॉइल पोल्यूशन किससे होता है? प्लास्टिक एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक कब से आया भारती जी? प्लास्टिक कब से आया? मेरे पैदा होने से पहले आया था सर, आई नो आइडिया। नहीं, मेरे कहने का मतलब है प्लास्टिक ज्यादा यूज कब से हो रहा है? प्लास्टिक बॉटल्स, दूध की थैली प्लास्टिक की, या जो हम सब कुछ प्लास्टिक के थैले लिए घूम रहे हैं, सब्जी भाजी सब लेके उसी में घूम रहे हैं, कब से शुरू हुआ? लास्ट 30-40 years। या ऑलमोस्ट 40-45 years। एड्स कब से आई है? ओके, अभी से एड्स आई है ना, इससे पहले तो एड्स किसी को मालूम नहीं। ठीक है, कनाडा में ओजोन लेयर फटी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में ओजोन लेयर फटी। तो जो ओजोन लेयर फटेगी तो पूरे स्किन जो है आपका स्किन कैंसर हो सकता है। तो स्किन कैंसर भी को नए जमाने की बीमारी है, पुरानी तो है नहीं। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की, और तो कहीं की कहीं है नहीं। ओजोन लेयर कहाँ की फटी है? ऑस्ट्रेलिया की या कनाडा में। ठीक, तो आपको ये पता चल जाएगा कि पंच तत्व से कि कौन सी प्रॉब्लम कहाँ पर होगी। ठीक है ना, ये एक डिफरेंट साइंस, तो बड़ी सारी चीजें हैं इसके अंदर, एंड नहीं होगी। ठीक है, चलो अब आज का हमारा ये पंच तत्व का ज्ञान खत्म। दिस विल बी यूजिंग इन अंडरस्टैंडिंग साइंस ऑल्सो। अब इसके बाद मैं बताता हूँ मैं अब आगे आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, बट आई विल टीच इन फ्यूचर, वो मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू दैट। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा 2 घंटे हर दिन। आधी क्लास होगी एस्ट्रोनॉमी की, मैथमेटिक्स, ठीक है, गणित, मैथमेटिक्स, गणित को क्या होगा, प्रेडिक्टिव। आदि जो है जो ज्योतिष है वो 2 भागों में है, गणित और फल। तो प्रेडिक्टिव जो है वो 1 घंटा पढ़ाऊंगा और 1 घंटा मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पढ़ाऊंगा। आज मैंने आपको पंचतत्व पढ़ाया, पंचतत्व के साथ आज बाकी का जो जितना भी टाइम बचा है मैं आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़ाऊंगा। कल से फिर हम पहले थोड़ा एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे और बाकी जो है उसका प्रेडिक्टिव पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम एस्ट्रोनॉमी। हम ज्यादा एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ जो है जो प्रेडिक्टिव या अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी जितनी रिक्वायर्ड है उतनी पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक, सर क्लास रोज हुआ करेगी? क्लास रोज हुआ करेगी सर? एवरी सैटरडे हाँ जी 4 to 6। जी। ज्यादा पढ़ के हुआ कुछ नहीं। इतनी जिंदगी में पढ़ाई किया भावना जी, क्या काम आई है वैसे? आपने कौन सी स्ट्रीम से पढ़ाई की थी? मतलब कॉमर्स वगैरह या साइंस या क्या? सर कॉमर्स। क्या पढ़ाई काम आई है? और सर, दो दूनी काम तो नहीं आई सर, हाउसवाइफ बन गए बस। नहीं, हमारे भी किसी काम नहीं आए। वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहते, केमिस्ट्री फिजिक्स के, उससे हुआ गया कुछ ना हुआ।
वो बीवी यही कहती है, ये लेके आ जाना, वो लेके आ जाना, दूध ले आना, अंडे ले आना, सब्जी ले आना, फ्रूट ले आना, ये कर देना, वो कर देना। वो फिर भी कहती है जिंदगी में तूने कुछ नहीं किया ना। कुछ समझा लो हमें, इस वक्त कीर्तिनगर जाने का मतलब क्या है? 5:30 दूर है। बाद में गप्पे मार लेने। ठीक है, चलो अब हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं जितना हमारे को जरूरत है। तो एस्ट्रोनॉमी में जो पढ़ने की चीज है वो स्टार्ट से ही हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहली है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है कि ये सोचा गया, ऐसा लगता है कि जो स्टार्स थे वो सब इकट्ठे थे, जो भी आपको दिखते हैं ये स्टार इकट्ठे थे, और एक बैंग की आवाज हुई और सारे अलग हो गए। अब सारे अलग हो गए तो वो छितरा गए, वो स्प्लिट हो गए। वो स्प्लिट हुए तो इट मेड मिलियंस ऑफ मिल्की वेज, एंड ईच मिल्की वे हैज मिलियंस ऑफ स्टार्स। बिग बैंग हुआ तो कई आकाश गंगाएं बनी। कितनी आकाश गंगाएं कोई नहीं जानता, काउंटलेस हैं। और एक आकाश गंगा में कितने प्लैनेट्स हैं? काउंटलेस हैं। अब आगे हम अपने सोलर सिस्टम। Our solar system has one star, sun. We share the same CA. It has one star. Star का नाम हमने दिया सन। तो जब शुरुआत में ऐसा माना जाता है कि ये जो सोलर सिस्टम बना, इट वाज लाइक ए क्लाउड, बादल था। और बादल जब ठंडा हुआ तो सेंटर में सन रह गया और प्लैनेट्स इसके आसपास घूमने लगे। ऐसे प्लैनेट्स घूमने लगे तो बीच में सन है, फिर एक प्लेनेट है, फिर ये प्लेनेट है, ये मैं सबके नाम लिख देता हूँ। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये है टॉप व्यू। ऊपर से हम देखेंगे तो ऐसे लगता है, साइड से देखेंगे तो कैसा लगता है मैं बता दूं। तो पहला सन के बाद मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो इस ऑर्डर में सबसे पहले सन के पास मरकरी है, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। उसके बाद तीन हो रहा है, यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो। एक आपने और शब्द सुना होगा, ज़ोडिएक।
मून अभी मैं बताऊंगा सर, मून और राहु केतु अभी मैं बता दूंगा। मून मून, so all the planets move around the sun, but moon moves around the earth. Moon is a satellite. The heavy heavenly bodies which move around a star, which are spherical in shape, are called planets. But heavy heavenly bodies which move around a planet are called satellites. अब zodiac क्या है? तो प्लेनेट और सैटेलाइट तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। प्लेनेट जो है मोटी बात है सन के आसपास घूम रहे हैं, स्टार के आसपास घूम रहे हैं, और सैटेलाइट जो है वो प्लेनेट के आसपास घूम रही है, बस मोटी सी बात है। अब ज़ोडिएक शब्द बार बार यूज आता है, ये हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सुनते तो बहुत है, ठीक है। तो मैं ध्यान से समझाया, तो मैंने अंग्रेजी में इतनी बड़ा कभी लिखा नहीं है, मैं लिख क्या दिया है। सो इफ आई ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के मिडल में, सन और अर्थ के मिडल से अगर मैं लाइन खींचता, इफ आई ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बिटवीन सेंटर ऑफ द सन टू सेंटर ऑफ द अर्थ, सन के मिडल से, सेंटर से, अर्थ के सेंटर से मैं एक लाइन खींचता हूं, तो जितने भी प्लेनेट है, जितने भी ये प्लेनेट है, एट डिग्री नॉर्थ और 8 डिग्री साउथ के बीच में ही सन का चक्कर लगा रहे हैं। सन का चक्कर 8 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में ही लगा रहे हैं। ये 16 डिग्री की जो बेल्ट है, इसको ही ज़ोडिएक कहते हैं। ये 16 डिग्री की 360 डिग्री की बेल्ट होगी ऐसे, है ना, इसको ज़ोडिएक कहते हैं। तो ये 360 डिग्री की जो बेल्ट है, ये 16 डिग्री की होगी ना, 8 डिग्री ये हो गया, 8 डिग्री हो गया। ये देखो, ये टोटल 16 डिग्री। ये बात समझ में आ गई सबको? नहीं समझ में? नहीं सर, नहीं आएगी सर। नहीं समझ में? नो सर। सर एक बार दोबारा बता दो ये। दोबारा ये समझ लो सन है, ये समझ लो अर्थ, ठीक है। मैंने एक लाइन की थी, यहाँ के मिड पॉइंट और यहाँ के मिड पॉइंट के बीच में मैंने लाइन की, ठीक है। अब इसके 8 डिग्री और 8 डिग्री, ये साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया। मरकरी, वीनस,
मार्स, जुपिटर, शनि, ये सारे के सारे इसी लाइन के आसपास ही हैं, इसी लाइन के आसपास ही चक्कर काट रहे हैं। जो ये 16 डिग्री की बेल्ट, इससे बाहर कभी नहीं जाते हैं, इसी में घूम रहे हैं सर। ये जो 360 डिग्री की बेल्ट है, इसको ज़ोडिएक कहते हैं। मैं एक मिनट अपनी बेल्ट बाहर के बात करता हूं। Zodiac is like a belt, like this belt, ऐसे। ये सारे प्लैनेट इसी बेल्ट के अंदर ही चक्कर काट रहे हैं। समझ लो सन बीच में और इस सारे के सारे ऐसे बेल्ट में, थोड़ा दूर है, थोड़ा पास है, ऐसे। पता नहीं समझा पाऊंगा। ओके, ये फ्रंट व्यू है। जो इसका टॉप व्यू है वो इस तरीके से, मैं इसको बिठा दूं, इसका टॉप व्यू है इस तरीके से। ये सन हो गया, ये एक ही प्लेन है, एक ही प्लेन है। ये नहीं है कि मरकरी ऐसे चक्कर काट रहा है, अर्थ ऐसे चक्कर काट रही है, वीनस ऐसे चक्कर काट रहा है, कोई ऐसे काट रहा है, कोई ऐसे काट रहा है। एक ही प्लेन में काट रहे हैं 16 डिग्री के अंदर। समझे मेरी बात? ये एक ही प्लेन में काट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सन ऐसे, सन के आगे मरकरी ऐसे चक्कर काट रहा है तो अर्थ ऐसे काट रही है, वीनस ऐसे काट रहा है, वो ऐसे काट रहा है, ऐसे उसे नहीं काट रहे। एक ही लाइन में है सारे के सारे। तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हल्के से, मतलब 16 डिग्री के अंदर अंदर, 8 डिग्री प्लस या 8 डिग्री माइनस फ्रॉम दिस लाइन, सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ अर्थ के बीच की जो लाइन है, उसी लाइन के आसपास ही ये सन के आसपास चक्कर काटते रहते हैं। ये 360 डिग्री का ही चक्कर काटेंगे, 360 डिग्री की बेल्ट है। अब समझ में आई बात है? हेलो, हाँ जी सर। नवीन जी, बात समझ में आई? हाँ जी सर। किया ना? हैव यू अंडरस्टूड? सो संजीव जी, तारिक जी, अरे वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू यार, थैंक यू। अब आ जाते हैं कि इसी 360 डिग्री के बेल्ट को थर्टी डिग्री ऐसे हमने काट दिया, मतलब 12 पार्ट्स में काट दिया। दीज आर कॉल्ड साइंस। साइन का मतलब क्या है? प्लीज अब मेरी बात को समझना। ये 360 डिग्री हो गया और इसको 30 ऐसे हमने 12 पार्ट्स में बांट दिया। तो 360 को 12 पार्ट में बांटेंगे तो 30 का होगा। अब इसके दूर देखते, दूर तो हमको एक क्लस्टर ऑफ स्टार ऐसा दिखेगा, एक ऐसा दिखेगा, एक कोई ऐसा दिखेगा। तो क्लस्टर ऑफ जो फर्स्ट स्टार है वो लगता है एरीज। फर्स्ट क्लस्टर ऑफ स्टार ऐसा लगता है जैसे मेल भेड़ खड़ा है, मेल शीप है या फीमेल शीप है, ये कैसे पता चला ये मुझे नहीं पता भाई, ये मत पूछ लेना। दूसरा है बुल, तो टॉरस। तीसरा है मेल फीमेल फेसेस आर सीइंग ईच अदर, तो थर्ड इज जेमिनी। तो ये इस टाइप से दूर देखते हैं हम, प्लैनेट से पीछे या ज़ोडिएक के अंदर 30 डिग्री में ऐसी सिंबल्स बने हुए। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सिंबल से दिखते हैं वो क्लस्टर ऑफ स्टार, जो है सिंबल से दिखते हैं। ये 16 डिग्री की बेल्ट होगी ना, तो ये एरीज सा दिखता है, ये टॉरस सा दिखता है, ये मेल फीमेल दिखता है, ये कैंसर दिखता है, केकड़ा, ये लॉयन दिखता है, ये वर्गो दिखता है, फिर लिब्रा दिखता है, लाइक ए बैलेंस, फिर स्कॉर्पियन दिखता है, स्कॉर्पियन के बाद सजिटेरियस दिखता है,
फिर ये कैप्रिकॉर्न, ये एक्वेरियस दिखता है, और ये दो मछलियां दिखती हैं पाइसेस। तो ये इस टाइप से जोडियक दिखता है। मतलब जोडियक का मतलब इसी 16 डिग्री एंड 30 डिग्री जो बैंड है उसमें पीछे दूर तक वो दिखता ही जाएगा, दैट इज एंडलेस। तो वो हमको दिखते हैं स्टार्स की फॉर्मेशन कैसी है, ये भेड़ जैसी है, ये बैल जैसी है, ये लड़का लड़की देख रहे हैं एक दूसरे, लड़का लड़की एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं ये मैं नहीं जानता, सब कुछ। ये बात समझ में आ गई आपको? सर सो दैट अप्लाइज कि 8 डिग्रीज तक जो बेल्ट होती है उसमें हमारे प्लैनेट्स होते हैं, उसके बाद हमारे ज़ोडिएक्स होते हैं। इज दैट नहीं नहीं नहीं, 16 डिग्री पूरा, वो तो प्लेनेट तो एक पॉइंट ही है। ओके, प्लेनेट तो पॉइंट है, वो भी स्टार्स भी पॉइंट्स है। हमें तो आप अगर आपको पता नहीं है तो आप नेकेड आई से यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट वेदर इट इज जुपिटर और सम अदर स्टार, यू कैन नॉट। मुझे भी नहीं मालूम, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे को कभी कभी समझ में आ जाता है ये जुपिटर है, बट वैसे आम आदमी, मैं भी आम ही आदमी हूँ, मैं कोई एस्ट्रोनॉमर तो नहीं हूँ, मैंने कितना ज्यादा देखा नहीं, बट आपको तो समझ नहीं आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड स्टार। वैसे मैं समझा देता हूँ आपको। स्टार टिमटिमाएगा, प्लैनेट टिमटिमाएगा नहीं बस। लेकिन अब दिल्ली में बैठे हम, दिखता कहाँ है, ऊपर दिखता ही कुछ, डस्ट ही दिखती है। लेकिन किसी विलेज में चले जाओ आप, या कनाडा चले जाओ, कनाडा में दिखेगा, कनाडा इज वेरी क्लियर, बहुत ब्यूटीफुल। वैसे मोटे मोटे दिखते हैं, इतना बड़ा सन दिखता है, इतना मून भी इतना बड़ा दिखता है, वो बड़े मोटे मोटे नजर आते हैं। भाई जैसे यहाँ इतना सा नजर आएगा ना, उधर इतना बड़ा नजर आएगा। इतना तो नहीं, मतलब कम से कम 2-3 गुना नजर आएगा। नवीन जी ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नवीन जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मोटे मोटे नजर आते हैं, पता नहीं इतने मोटे कहाँ से। अच्छा, मच्छर भी मोटे मोटे वहां के नवीन, है ना? लेकिन है बुद्धू है, मैं ऐसे मारो मर जाते, उड़ते नहीं। नवीन जी ठीक कह रहे हो? जी सर, पीसफुल कंट्री में मच्छर रहते हैं। है जी, सर पीसफुल कंट्री में रहते हैं ना, इसलिए वो पीसफुल है, आराम से मारो मर जाते हैं। हाँ आराम से मर जाते, पता नहीं चले मतलब। सर अर्थ सन के आसपास चक्कर काट रही है, मून अर्थ के आसपास चक्कर काट रही है। अर्थ सन के आसपास चक्कर काट रही है, मून अर्थ के आसपास चक्कर, दोनों जो के पाथ कहीं इंटरसेक्ट जरूर होंगे। तो दीज इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर कॉल्ड राहु एंड केतु। अंडरस्टूड? सर एक बार प्लीज दोबारा बताइए। See, Earth is moving around the sun, Moon is moving around the Earth. So Earth is moving around ऐसे, और Moon Earth के आसपास ऐसे काट रहा चक्कर, जैसे Earth ऐसे जाती जा रही है, Moon ऐसे ऐसे घूमता जा रहा है। तो वो जो Earth के और Sun के का जो पाथ है, Earth जो Sun के आसपास जो पाथ है, और Moon और Earth के आसपास जो घूमता है उसका जो पाथ है, दो जगह कटेंगे वो। जैसे अर्थ ये चक्कर काट रही है सन के, तो मैंने ये पाथ बना दिया, मून अर्थ के आसपास चक्कर काट रहा है, तो ये जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाले और ये वाले, दीज आर कॉल्ड राहु एंड केतु। क्लियर और नॉट? तो सर इसमें मतलब जो सन और अर्थ के बीच में है वही राहु है, और जो अर्थ से और सन के बीच में नहीं है वही केतु है। ये जो मून का ये जो ये
और ये केतु ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये केतु है, ये डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, तो ये राहु। आप समझ गए? जी सर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे पता चलेगा राहु कौन सा केतु कौन सा? और बोथ आर 180 डिग्री अपार्ट, 180 डिग्री अपार्ट। राइट सर। So these are called Rahu and Ketu. They do not possess any body. They are just intersection point, but they are very effective. Effective क्यों है? क्योंकि जब अर्थ मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ गया तो अर्थ को एक्लिप्स कर देगा, सन आप देख नहीं सकते। और अगर मून यहाँ आ गया तो आप को मून दिखेगा नहीं। मून अगर तो अर्थ की छाया मून पे पड़ जाएगी तो मून दिखेगा नहीं, तो इट बिकम्स ल्यूनर एक्लिप्स। सो दी वो जो छाया है उसकी छाया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? Shadow plays a very big role. So the energy is obstructed, which is coming from lunar and solar bodies, है ना? जो मून और सन में से आ रही हैं, उसकी जो एनर्जीज है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। तो ये जो है पावरफुल बहुत है। ठीक है, अब मैंने आपको समझा दिया कौन क्या है, तो आपको ऐसे याद करना है। तो हर क्लास में होमवर्क मिलेगा, हर क्लास में होमवर्क मिलेगा और होमवर्क चेक करा जाएगा। जो बच्चा होमवर्क नहीं करके आएगा उनके बच्चों से कॉपी पे साइन करवा के नेक्स्ट टाइम लाना होगा। मैं जब कंप्लेंट लिखूंगा तो अगर नवीन जी आप वो नहीं करोगे, क्या नाम है, होमवर्क नहीं करोगे, तो आप अपने बेटे से साइन करवाओगे, आपको कंप्लेंट ठीक है। पापा इज नॉट सीरियस इन स्टडीज। ठीक है, तो प्लैनेट्स को आपने इस ऑर्डर में याद करना है। जो ऑर्डर सोलर सिस्टम का उसमें याद नहीं करना, डिफरेंट ऑर्डर है, इस ऑर्डर में याद करना है। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, एक वीक में ये याद होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होना चाहिए। ठीक है, रट्टा होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2। Taurus. Cancer. Leo. Virgo. Libra. Scorpio. बेटी का फोन डांट पड़ेगी। साइंस ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। These symbols we do not use. The symbols are used by Western astrologers. Even planets also have symbols. If you want to remember the symbols, it is good, but we don't use. Ketu ऐसा, Venus, Sun, Moon, Mars, Saturn. Symbol, if you want to remember, is fine. If you don't want to remember, it's also fine. In Hindu astrology, we do not require to know the symbols. Symbols जो है वो हमको कोई requirement नहीं है, वो वेस्टर्न सिस्टम उनकी बुक्स के अंदर वो लिखते भी नहीं है साइंस और प्लैनेट्स। उनकी किताब कभी भी हाथ में आएगी फिर हमें जरूरी है, लेकिन वो वाला सिस्टम हम यूज नहीं करते, तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आएगी। बट अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है। याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है।
बट ये साइंस है, जैसे आप 5 है, सो 5 इज लियो फॉर एन एस्ट्रोलॉजर, लाइक 9 इज सेजिटेरियस, 11 इज एक्वेरियस। इस तरह से उल्टा भी और सीधा याद होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं एक्वेरियस 11, लियो 5, एरीज 1, तो 1 एरीज, 9 सेजिटेरियस, ऐसे दोनों तरफ से याद होना चाहिए। ये 15 डेज में याद होना चाहिए, ये 7 डेज में याद होना चाहिए। तो याद करने का तरीका क्या है? तो जो कार चलाते हैं वो अपने कार के डैशबोर्ड पे लिख के उसको चिपका लो। रेड लाइट के टाइम पे देखना, वैसे नहीं देखना। तो अभी मैडम जी कह रही थी कि भाई अब तो घर में ही रहते हैं हम, किचन में ही रहना होता है, ठीक है। तो किचन में लॉकडाउन कर दो आप, हैं? 7 से 8 नाश्ता, 11 1 से 2 लंच और 8 से 9 डिनर। वो कोरोना बढ़ रहा है। और जब आप सीरियल देखते हैं, क्योंकि सांस में भी कभी बदबू थी सीरियल आते, तो उसके भी में जब ऐड आए तो फिर आप देख लिया, या फिर गैस के पास ही चिपका लो आप वहां, तो आपको मतलब एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, आप देखते रहो, बस देखते देखते याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो ऐसे कोई मेजर चीज मैंने को बहुत ज्यादा बड़ी चीज तो कही नहीं है, ठीक है। हेलो, ये सब वैसे आपको नेट पे मिल जाएगा, तो ऐसी बड़ी चीज नहीं है। पर ये ऑर्डर जो प्लैनेट्स का है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यही मिलेगा आपको, साइंस का तो प्लैनेट्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, आपको इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लैनेट्स याद करना। अब आपको मूवमेंट ऑफ अर्थ पता होनी चाहिए। अभी तो हमने प्लैनेट्स के नाम पता कर लिए, साइन क्या है वो पता कर लिए, जोडियक, जोडियक लिखा होता है उसका मतलब क्या है, इज अ 16 डिग्री बैंड जिसके अंदर दे आर प्लैनेट्स आल्सो एंड सन आल्सो, सैटेलाइट आल्सो, राहु केतु आल्सो। तो जोडियक का मतलब चल रहा है, जोडियक क्या है, 16 डिग्री का बैंड है जिसके अंदर सारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। अब हमको मूवमेंट ऑफ अर्थ, 3 मूवमेंट है अर्थ की, 2 तो पढ़ाई जाती हैं स्कूलों के अंदर, है ना। फर्स्ट इज रोटेशन ऑन एक्सिस, तो अर्थ रोटेट्स इन 24 आवर्स, ठीक है, वो सबको पता। और चीजें बता दूंगा रोटेशन के बारे में जब जरूरत पड़ेगी अगर तो एक है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सो रेवोल्यूशन of earth around the sun takes 365 days and a quarter, quarter तो आपको पता ही। थर्ड है प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स, ये पंगा है, 25,924 साल, ये पंगा है, ठीक है। तो हमको लगता है कि अर्थ जो है, ये जो उसकी एक्सिस है, समझ लो ये पेन एक्सिस है, ये ऐसे घूमती है, ऐसे नहीं घूमती, ये ऐसे घूमती है, ये सॉरी, ये ऐसे घूमती है एक्सिस। ये आप समझ में आ रहे हैं एक्सिस कैसे घूमती है? तो अर्थ की एक्सिस ऐसे घूमती है।
ये ऐसे सीधी स्टेशनरी नहीं है, ऐसे नहीं घूम रही, ये ऐसे घूमती है। समझ में आ गई आपको? ये ऐसे नहीं घूम रही, ये ऐसे ऐसे भी घूम रही है। कहने का एक तो रोटेशन तो चल रही है, रोटेशन के साथ साथ उसकी इस टाइप की मूवमेंट भी है। ये ज्यादा आंसर है, ये उंगली से बताया था, ये ऐसे ही, हाँ ऐसे ही बता सकते, ठीक है, ये ऐसी है। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो ऐसे नहीं खड़े, उनकी भी मूवमेंट चलती है ऐसे। साउथ पोल भी ऐसे घूमता, नॉर्थ उल्टा घूमेगा साउथ पोल तो नॉर्थ से, क्योंकि ऐसे। ये बात समझ में आ गई? सर ये एक बार प्लीज दोबारा बताइए। अच्छा, किसने पूछा? सर भावना जी, भावना जी, भावना जी लट्टू चलाया आपने? हाँ जी सर। अब समझ, अब जब लट्टू स्लो होगा तो कैसे चलेगा? सर टेढ़ा मेढ़ा होगा सर। ये है मूवमेंट जो 25,924 साल में ये मूवमेंट आया। समझ में आ गई बात? जी सर, ठीक है, समझ गई सर जी। ये 25,924 साल एक साल में, ये तो 25,924 में कितना हो गया? 360 डिग्री पूरा घूम जाएगा। ये डॉक्टर पानी तो 1 ईयर में ये 50.238847 सेकेंड्स रोटेट होती है, मतलब नेग्लिजिबल। 360 डिग्री होगा ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये होगा 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल फिगर है ना, यह मैंने लिख दिया अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट। तो एक साल में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन 1000 ईयर इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। 1000 साल में बहुत फर्क पड़ जाता है, 2000 साल में बहुत पड़ जाता है, 3000 साल में बहुत पड़ जाता है, 1 साल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसने निकाला था? लगत। लगत वाज इंडियन एस्ट्रोनॉमर। अराउंड 700 बिफोर क्राइस्ट निकाला। ये हमारी हिस्ट्री जितनी हमें पता है उससे पहले किसी ने को पता हो मालूम नहीं है, बट दिस वी नो, लगत ने निकाला था। जस्ट टू टेल यू दैट्स ऑल। अब ये ऑपोजिट जो अर्थ की रोटेशन है और उसकी जो रेवोल्यूशन है उसके उल्टा चलता है। इसको संस्कृत में कहते हैं प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स को, अयनाश। क्या कहते हैं ये याद रखना, इसको संस्कृत में अयनाश कहते हैं। मैंने संस्कृत में लिख दिया है यहाँ पे अयनाश, अंग्रेजी में ऊपर लिख दिया अयनांशा। ये अंग्रेजी में लिख दिया, ये हिंदी में लिख दिया। तो जिनको हिंदी नहीं आती, तारिक साहब को नहीं आती, कियाना टू नो इंग्लिश हिंदी, तो संस्कृत तो मैंने लिख दिया ये। तो अंग्रेजी में अनामशा लिखेंगे, कभी भी अनाश नहीं लिखते। कोई भी है ना उसमें ए लगा लें, जैसे कृष्ण है तो कृष्णा, राम है तो रामा, कर्नाटक है तो कर्नाटका, केरल है तो केरला। तो डैन को क्या कहेंगे? क्या ना, डैन को कृष्ण इज कृष्णा, कर्नाटक इज कर्नाटका, केरल इज केरला, अनांश इज अनांशा, डैन इज, चलो वो पार्ट ऑफ कोर्स नहीं है वो थोड़ा। ओके, ऑडियो वीडियो इज गेटिंग स्टक। ओके सर। सर ये जो लगत लिखा हुआ है सर, ये क्या है? एक बार दोबारा बताएंगे प्लीज। क्या सर?
सर ये 1 ईयर का जो आपने टाइम बताया 50.23 मैं आपको ये बोल रहा हूँ, precession of equinox is called enarchen. Correct? हाँ जी सर। This precession of equinox or the wobbling of Earth, wobbling of the axis of Earth, completes 360 degrees in 25,924 years. जी सर। जो अर्थ की वॉबलिंग है 25,924 साल में कंप्लीट होती थी। अब एक साल में कितनी चलेगी? 25,924 360 डिग्री 25,924 में होती है, तो एक साल में कितनी? एक साल में इतने सेकंड्स चलती है। मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा? 25,924 साल में 360 डिग्री चलती है, तो एक साल में कितनी चलेगी? एक साल में इतनी है 50.238847 सेकंड्स। अब ये सेकंड कितना होता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। कितनी बड़ी कम माइनस सी। तो कैलकुलेट मत करो, सिर खपेगा और कुछ नहीं। तो कैलकुलेट करना भी है तो फिर वो बड़ा लफड़ा होता है। 25,924 डिवाइड बाय 360 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 60 करके आएगा 360 into 60 into 60, तो ये आएगी फिगर। तो आपको उतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो माइनर सा है, नेग्लिजिबल है। जो अर्थ की फिर में अर्थ की जो रोटेशन है, सॉरी वॉबलिंग जो उसकी एक्सिस की है, वो 25,924 साल लेती है। 25,924 साल में 360 डिग्री चली, तो एक साल में कितनी चली? नेग्लिजिबल। तो उसके नीचे भी सर आपने कुछ लगत करके लिखा हुआ है? लगत नाम है एस्ट्रोनॉमर, ओके। जिसने ये वैल्यू निकाली, जिसने Thank you, बताया ये ऐसा है, उसने वैल्यू भी निकाली। कब निकाली? ये लगत कब का है? 700 BC, आज से कोई 2800 साल पहले ये दूरबीन लेके बैठा करता होगा, मालूम टेलीस्कोप लेके कहीं बैठता होगा बेचारा, हमें क्या मालूम कहाँ बैठता है। थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बताया तो थोड़ा, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब गोरे समझ गए ना, अंग्रेज, उन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। तो इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स होती थी, हर स्टेट का अपना पंचांग होता था। सब पंचांग मीन्स अपना कैलेंडर होता था, डेज एंड नाइट्स अपना वो ईयर जो है वो अपना निकालते थे। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर जो है, जो पूरे इंडिया में यूज होता था, दैट वाज काली कैलेंडर। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। काली कैलेंडर होता था। काली कैलेंडर स्टार्टेड फ्रॉम द बर्थ ऑफ अर्थ। कब बर्थ हुआ उससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं, हमें मतलब है अभी के टाइम का। तो जब गोरों ने पूरी दुनिया पे राज कर लिया, सो देन दे हैड अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द टाइम। व्हाट इज द टाइम in London, so what will be the time in India, what will be the time in Canada, what will be the time in Philadelphia। तो उनको समस्या होने लगी कि डिफरेंट जगह पे क्या टाइम होगा।
फिर ट्रेन जब चलने लगी और समस्या, ट्रेन चली समझ लो मुंबई से कलकत्ता, तो मुंबई में कितने बजे चलेगी तो कलकत्ता कितने बजे पहुंचेगी, एक फिक्स टाइम होना चाहिए। तो उन्होंने अर्थ को लॉन्गिट्यूड में और लेटिट्यूड में बांट दिया। 0 डिग्री जो है ये ग्रीनविच से निकाला हुआ है। ग्रीनविच जो है इट इज नियर लंदन, लंदन से निकाला। और इंडिया को दिया 82 डिग्री 30 मिनट्स। The place is called Prayag. Previously it was known as Allahabad. तो इंडिया का जो टाइम है वो 82 डिग्री 30 मिनट से निकलता है। टिल 1951 पाकिस्तान कंटिन्यूड द इंडियन टाइम। So Indian time is IST. You all know. So people in Canada they have 3 time zones. कनाडा में 3 टाइम जोन है ना, पाकिस्तान में 1 टाइम जोन है, तो वो 5 घंटे बिफोर ग्रीनविच मीन टाइम। और जो इंडियन का टाइम है 5 आवर्स 30 मिनट है, बांग्लादेश का टाइम है 6 आवर्स है, नेपाल का 5:45 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। हम क्योंकि ईस्ट में, तो ये उन्होंने लॉन्गिट्यूड जो है अर्थ को 2 भाग में बांट दिया, ईस्ट एंड वेस्ट। अर्थ को 2 भाग में बांट दिया, ईस्ट और वेस्ट। वो लाइन कहां से उन्होंने काटी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ग्रीनविच में से। तो लॉन्गिट्यूड की जितने भी हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल को ही मिलती हैं जाके, लेकिन अर्थ में कौन सी जगह से मिलती हैं वो एक क्वेश्चन हो गया। तो जहां से रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट इज ग्रीनविच विच इज नियर लंदन। इंडिया का हो गया प्रयाग। तो हम कितने घंटे आगे हैं ग्रीनविच से या लंदन से? 5.5 घंटे। कैसे आगे हैं? कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी? अर्थ की रोटेशन 360 डिग्री कितने टाइम में? 24 आवर्स में। सो 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 into 60 equal to 1440 minutes. So 1 degree is equal to 1440 upon 360. So Earth 1 degree rotation will be in 4 minutes. So 82 degree 30 minutes rotation equal to 4 into 82 and 30 into 4. 82 into 4, 30 into 4, so हो गया 328 मिनट, 120 सेकंड, 328 मिनट, 2 मिनट, 0 to 330 minutes, 0 to 5 hours. So Indian time is 5 hours 30 minutes ahead of Greenwich Mean Time. Pakistan time is 5 hours ahead of Greenwich Mean Time. Brampton is after Greenwich. Brampton is towards it's towards the west. Okay? तो उसका लॉन्गिट्यूड निकालना पड़ेगा, उससे हमें पता चल जाएगा ब्रैम्पटन कितना। तो मॉन्ट्रियल का टाइम सेम है सर, मॉन्ट्रियल का ओटावा का टाइम सेम मीन ये अलग है? न्यू बंसविक का अलग है, न्यू बंसविक का हेलिफैक्स का। ओके ओके ठीक है।
सो उसका अलग होगा। जैसे अब उसका देखना पड़ेगा ब्रैम्पटन का लेटीट्यूड क्या है ना, लॉन्गिट्यूड क्या है, तो उससे पता चल जाएगा वो कितना हेड यार वो है। तो ब्रैम्पटन का मैं बताता हूँ जरा, बनेगा कनाडा, कनाडा में जाना, इसका देखना होगा, सॉरी उसका वो देखना पड़ेगा, मेरे को मालूम नहीं है इसका वो लॉन्गिट्यूड कौन सा लिया, तो उससे बता दिया। वैसे बता कैलकुलेशन नहीं बताता, लेकिन वैसे बताता, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे ये हो गया कनाडा, कनाडा, कनाडा ब्रैम्पटन, ब्रैंडफोर्ड भी वही है। 5 आवर्स, तो अभी जो है 5 आवर्स ऐड है, तो इसका मतलब 10-30 आवर्स का फर्क है इंडिया का और ब्रैम्पटन। हाँ सर, वो वेस्ट का जो है वो हमें उसके लंदन के बाद आएगा, तो हम अहेड हो गए, आप लैग कर रहे हो, हम लीड कर रहे हैं। तो अभी 10:30 है, अभी 10:30 आवर्स का फर्क है, मतलब इंडिया और you will have to add or subtract. East has to be added, west has to be deducted. Okay, what is the time now? Is 6 hours 10 minutes. EST 9:20. Okay. अभी जो हमारा है इंडिया का, that is 5:30 plus of England. तो अगर हमारा अभी 18:10 है, अभी हमारा टाइम सर 18 मान लेते हैं राउंड फिगर में, तो लंदन में इस समय पे 5:30 माइनस कर देंगे, कितना बन, लंदन में कितना टाइम 30 17, वहां पर 12:30 बज रहे वहां, तो हम ऐड करेंगे तभी तो 18 होगा। 12:30 बज रहे हैं आपके और मैं कितने, आप 4 घंटे आप और पीछे, आपके 8:30, आपके 8:40 हो रहे हैं सर, 8:40। आज बस इतना ही पढ़ाना मेरे को, इससे नहीं पढ़ाना। मैंने 2 होमवर्क दिया, एक तो मैंने पंचतत्व पढ़ाया है ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ाई किया है, व्हाट वी हैव लर्न। एक तो पंचतत्व और 5 elements we have studied, what is the actual meaning of that, right? So you can see my video again, you can just think about it, about which food item I eat, so what happens in my body. So when you will eat sweet, it will give energy, but it will make your body heavy. So when you will be eating fiery things, it will make your body light, or astringent, it will make your body light. So when you put astringent things or spicy, so it makes your body more energetic, but that doesn't mean you have not to eat the cuff item or earthy item, because that is the thing which is going to burn, but it will make the food lighter. Which will make the food lighter? Fiery things will make food lighter. Pitta will make the things, the food lighter. जब तक हम उसको आग नहीं लगाएंगे, जब तक खाने को आग नहीं, हीट नहीं करते, तब तक फूड हैवी रहता है। तो कनाडा में बड़ा अजीब है तारिक साहब, कनाडा के अंदर सब चीज ठंडी खाते हैं। अंडा भी खाएंगे तो उसको फ्रीजर में डाल देंगे, बॉइल्ड अंडे को। ठीक। जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको वो बर्फ खाने को देंगे, पानी नहीं देंगे। वो यहाँ पानी है तो उसके अंदर वो आइस क्यूब्स डाल के चला जाएगा, उसमें से भी नीचे जो पानी निकलेगा तो आइस ही कोल्ड निकलेगा। तो बोले पी लो, मेरे समझ नहीं आता भाई क्या करते हैं। गर्म चीज तो खाते नहीं, देते ही नहीं कुछ, ना कॉफी पीते हैं ना चाय, जो पियेंगे कॉफी भी ठंडी पियेंगे,
सब कुछ चिल्ड है इनका, पता नहीं क्या सिस्टम है, कौन से ठंडे देश में है ये। खैर कोई बात चलता है ना। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने आपको एस्ट्रोनॉमी बताई थी कि प्लैनेट्स कौन से हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। अर्थ तो हमारा रेफरेंस पॉइंट है तो हमने वहीं से लेना। तो दीज आर प्लैनेट, राहु केतु आर शैडोई प्लैनेट्स, दे आर नॉट प्लैनेट्स, बट हम प्लैनेट कह देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। मून इज अ सैटेलाइट, हिंदी में कहेंगे उपग्रह, लेकिन अंग्रेजी में इट इज सैटेलाइट। सो मून मूव्स अराउंड द अर्थ। सो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ moon's path and earth path are Rahu and Ketu. So these are also called Navagraha, 9 planets. Navagraha in Hindi, है ना? From ancient times we know about Navagraha. ये मैंने आपको concept of time बता दिया एक जनरल सा। एक मैंने आपको 3 मूवमेंट ऑफ अर्थ बताई। तो रोटेशन तो आपको पता है, रेवोल्यूशन आपको पता है। ये जो अयनांश है या प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स है, इसको याद कर लें। ये बाद में मैं रिपीट भी करूंगा कई बार वैसे, लेकिन आप याद कर लेंगे। अच्छा, आपको जो चीज याद रहनी चाहिए वही रहनी चाहिए, दी ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स, chronological order of planet, chronological orders of signs, that you must remember. Now if you have any questions please ask, आप मेरे को पूछ सकते हो। मुझे तो एक एक करके प्लीज। पहले आप लेडी फर्स्ट। ये सर अभी तो इतनी इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो गई है, आई थिंक क्वेश्चन निकलेंगे बाद में। हाँ कोई बात नहीं, मैं वैसे कोई चीज नहीं समझ में आई होगी या कुछ। लेडा आफ्टरवर्ड्स प्लीज। मेरा सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी कैसे? रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्ड हो रही है ना, वो अपलोड कल तक हो पाएगी, ओके ठीक है सबको मिलेगी, वो मैं सबको भेज दूंगा। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? मुझे सिर्फ ये पूछना था कि साइंस में जो आपने दिया होमवर्क, ये एरीज टॉरस वगैरह याद करना है ना, उनके सिंबल तो याद नहीं करना है ना कि सिंबल क्या होते हैं। सिंबल कोई याद नहीं करने, आपकी इच्छा है कर लेना, नहीं है अच्छा कोई बात। मेरी तरफ से मैं तो कम से कम चाहता हूँ चीजें याद, जितनी कम होगी दिमाग फ्री रहता है, पढ़ पढ़ के भी क्या हो गया। जी चल ठीक है सर जी, तो मिलते हैं अगले शनिवार इसी समय, शनिवार अगले इसी समय, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी। ओके सर, थैंक यू सो मच जी।